Good morning, students. I hope you would be fine. Today I am present here with a beautiful poem named The Tree. It has been taken out from a standard 6th English book, English Fairy. There are total 10 stanzas of this poem. This beautiful poem has been composed by Keki and Daruwala. In this poem, the poet shows a special relationship with a particular tree. यह पोएम जो है केकी एन दारूवाला के द्वारा रचित एक सुंदर पोएम है और इस पोएम में पोएट ने एक मानवीय संबंधों को एक खास पेड़ों के साथ जोड़ता है और यह बतलाता है कि हमारी तरह पेड़ भी कुदरत का दिया हुआ एक अनमोल रत्न है, एक अनमोल वस्तु है जिसकी देखभाल करना हमारी जिम्मेवारी है। तो इन्हीं सारे जिम्मेवारी को समझते हुए पोएट ने एक विशेष प्रकार के संबंध को एक खास पेड़ के साथ जोड़ते हुए पोएम को आगे बढ़ाते हैं। मैं इस पोएम का पहले रिसाइटेशन करूंगा और फिर आपको स्टेंजा बाय स्टेंजा इसको समझाऊंगा। लेट अस बिगिन reciting of the poem. Next to the track, beside the house, Dad planted a gulmohar. We tended it, we watered it. It wanted more and more. When first its little shoots of green spread across the boughs, some of us said, "Ha, that's a great." And some of us said, "Wow, its branches were so low we drove the goats away and cows." It's really kept us on our toes. A baby tree needs care. Next year, the green fuzz changed to leaf. Next year, the blossoms flared. It turned into a red-roofed tree, a thing of rare beauty. Its falling flowers and its shade, they covered half of the track. It sheltered us from sun and rain. The tree had paid us back. These are the 4 stanzas of this beautiful poem, which I recited still now. Now I want to repeat it once again. Please listen to it very carefully. Next to the track, beside the house, Dad planted a gulmohar. We tended it. We watered it. It wanted more and more. Now, second stanza. When first its little shoots of green spread across the boughs, some of us said, "Ha, that's great." And some of us said, "Wow, its branches were so low we drove the goats away and cows." Now third stanza. It really kept us on our toes. A baby tree needs care. Next year, the green fuzz changed to leaf. Next year, the blossom flared. It turned into a red-roofed tree, a thing of beauty rare. Fourth fourth stanza. It's the falling flowers and its seeds. They covered half the track.
It sheltered us from sun and rain. The tree had paid us back. अब मैं इस 4 जो स्टेंजा है इस पोएम का, इसका मैं स्टेंजा बाय स्टेंजा हिंदी मीनिंग को समझा रहा हूँ। तो पहला स्टेंजा का जो मीनिंग है उसको आप समझने की कोशिश करें। Next to the trek beside the house, Dad planted a gulmohar. We tended it, we watered it. It wanted more and more. इस फर्स्ट स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि मेरे घर के ठीक आगे थोड़ा सा जगह था जिसमें पिताजी ने एक गुलमोहर का पेड़ लगाया। हम सभी इसकी देखभाल करते थे, इसमें पानी डालते थे और इस पेड़ को और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता थी। इस पेड़ की देखभाल करने की और आवश्यकता थी और ज़रूरत थी। नाउ नेक्स्ट स्टेंजा। When first its little shoots of green spread across the boughs, some of us said, "Ha, that's great," and some of us said, "Wow, its branches were so low, we dropped the goats away and cows." इस दूसरे स्टेंजा में पोएट बताते हैं कि जब यह छोटा सा एक टहनी निकला, जब इस पेड़ में एक छोटा सा टहनी निकला तो यह अपने शाखाओं को चारों तरफ फैलाने लगा और हम लोगों ने बड़े ही खुशी के साथ कहा कि वाह कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। और इसकी शाखाएं इतनी नीची थी कि कोई भी बकरी और गाय आकर इसके पत्ते को खा सकती थी, इसीलिए हम लोगों ने बकरियों को और गायों को भगा दिया। Now third stanza. It really kept us on our toes. A baby tree needs care. Next year the green fuzz changed to leaf. Next year the blossom flared. It turned into a red roofed tree, a thing of beauty rare. इस थर्ड स्टेंजा में पोएट बताते हैं कि हम लोग जो थे इसका बहुत ही अधिक ध्यान देते थे क्योंकि इस छोटे पेड़ को ध्यान देने की ही आवश्यकता थी। अगले साल इसके जो छोटे छोटे जो पत्ते थे वो बड़े पत्तों में परिवर्तित हो गए और छोटे छोटे फूल जो थे वो खिलकर बड़े फूल हो गए और ऐसा लगता था कि ये पूरा जो फूल है ये बिल्कुल एक लाल छत की सीलिंग है। और इतनी सुंदर दृश्य जो है वह बहुत ही कम किसी को नसीब होता है देखने का। तो इस तरह से थर्ड स्टेंजा में पोएट ने गुलमोहर ट्री को एक बेबी के रूप में, एक बच्ची के रूप में दिखाया है और बताया है कि किस तरह से पोएट ने उस पेड़ को एक छोटे बेबी की तरह देखभाल किया और बाद में उसके छोटे पत्ते बड़े पत्तों में परिवर्तित हो गए। फिर उसके छोटे छोटे जो ब्लूजम्स थे, छोटे छोटे जो फूल थे वो किस तरह खिलकर बड़े फूल हो गए और फिर वो फूल बिल्कुल लाल हो गया और ऐसा लगता था कि पूरा पेड़ ही लाल रंग की छत है। और ऐसा सुंदर दृश्य हर किसी को देखने का अवसर बहुत कम ही मिलता है। नाउ फोर्थ स्टेंजा। Its falling flowers and its shade, they covered half the tree. It sheltered us from sun and rain. The tree had paid us back. इस चौथे स्टेंजा में पोएट ने बताया कि इसके पत्ते जो है वो गिरते थे और पूरे ट्रैक को बिल्कुल पूरे ट्रैक पर इसके पत्ते भर जाते थे, चारों तरफ छितरा जाते थे और इसकी छाया जो थी वो पूरे ट्रैक यानी पूरे उस जगह को कवर कर लेती थी, पूरे जगह को घेर लेती थी, पूरे जगह पर कब्जा कर लेती थी। तो इस तरह पोएट ने यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि किस तरह से उसके पत्ते जो थे वो ज़मीन पर गिरते थे और अपनी छाया से ज़मीन का आधा भाग जो है वो घेर लेते थे। It sheltered us from sun and rain. The tree had paid us back. और इसकी छाया जो थी हमें सन और
हमें सन से बचाती थी। जैसे कि सूर्य की तेज़ गर्मी जब पड़ती थी, सूर्य की जब तेज़ धूप पड़ती थी तो यह हमें सुरक्षा प्रदान करता था और यह हमें वर्षा से भी बचाता था। तो जिस तरह से हम लोगों ने एक छोटा सा बेबी समझकर इस पेड़ की देखभाल की थी, ठीक है, तो यह पेड़ ने अपनी कृतज्ञता के रूप में हमारे सारे एहसानों का बदला चुका दिया, ठीक है। अपने सुंदर फूलों को धरती पर बिखेर कर, अपनी छाँव को देकर, हमें धूप और वर्षा से सुरक्षा प्रदान कर। तो पोएट यहाँ पर ओवरऑल ये बताना चाहते हैं कि एक गुलमोहर पेड़ ने उनके द्वारा किए गए कार्यों का एहसान जो है बखूबी से सही तरीके से चुका दिया, ठीक है। तो इसकी जो बाकी जो 6 स्टेंजा है वो मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा। आई होप यू विल हैव गॉट दिस ब्यूटीफुल पोएम फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट। नाउ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ गुड डे।